عمران خان کو گرفتاری کا ڈر حفاظتی ضمانت کے لیے ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کمرہ عدالت میں عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا، کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا دے گی؟ عمران خان نے جواب دیا، اگر نہیں اڑائے گی تو سوال یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ ایسے میں تو یہ کبھی بھی کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ملک میں جنگل کا قانون بنا ہوا ہے۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ اس سماعت کے بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے، نعیم ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اسلام آباد میں دہشت گردی کے جو کہ درج 5 مقدمات میں حفاظتی ضمانتوں پر سماعت جو کہ ابھی وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ ان کی پٹیشن پر وہ نمبر لگایا جائے جو کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض لگایا گیا تھا، کیونکہ سرکاری وکیل نے کہا کہ یہ جو درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، لہذا جس پر جو کہ عدالت نے کچھ دیر کے لیے سماعت وہ ملتوی کر دی اور ہدایت کی ہے کہ اس پر جو پٹیشن نمبر ہے جو رجسٹرار آفس ہے اس کو ہدایت کی ہے کہ اس پہ جو پٹیشن نمبر ہے وہ لگایا جائے۔ جسٹس طارق سلیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس پر سماعت کر رہے ہیں۔ عمران خان جو کہ حفاظتی ضمانتوں کے روبرو وہ بینچ میں پیش ہوئے ہیں، انہوں نے جو کہ ان کے وکلا کی جانب سے عدالت میں دلائل دیے گئے ہیں۔ عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ رجسٹرار آفس نے جو کہ دوبارہ حفاظتی ضمانتوں پر اعتراض عائد کیا ہے، آج رات 12 بجے ان کیسز میں حفاظتی ضمانت جو کہ ختم ہو جائے گی۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونے کے لیے جاتا ہوں تو جوڈیشل کمپلیکس میں جو حالات سامنے آئے ہیں سب کے سامنے ہیں، جس پر جسٹس طارق سلیم نے کہا کہ یہ دوسری حفاظتی ضمانت کی درخواستیں ہیں، آپ کوئی قانون یا عدالتی فیصلے پیش کریں۔ عدالت نے کہا کہ حفاظتی ضمانتوں کا تصور 3 سال سے پہلے نہیں تھا، جس پر عمران خان نے کہا عدالت کو کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، جتنے کیسز مجھ پر بنائے گئے حیران ہے کہ اتنے کیسز کیسے نمٹیں گے۔ اسلام آباد جاتے ٹول پلازے پر عدالت جانے کے لیے میں جاتا ہوں تو راستے پر روک لیا جاتا ہے، خود ہی شیلنگ کرتے ہیں، خود ہی مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ اتنے مقدمات بنائے گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ عدالت میں جب سرکاری وکیل نے کہا جی یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ اس پر جو کہ آفس نے اعتراض لگایا ہوا ہے اور آفس نے اس پر نمبر بھی نہیں لگائے، جس پر جو کہ عدالت نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو ہدایت کی ہے کہ اس پر جو کہ پٹیشن نمبر لگایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو نعیم دوبارہ سماعت کب تک شروع ہو جائے گی؟ جی بالکل، یہ پٹیشن رجسٹرار آفس کو پہنچا دی گئی ہے، کچھ دیر میں یہ جو پٹیشن نمبر ہے وہ لا کر آ جائے گا۔ اس کے بعد جو کہ جسٹس طارق سلیم کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت دوبارہ کرے گا اور عمران خان کے وکیل ہے وہ عدالت میں دلائل دیں گے اور سرکاری وکیل وہ بھی عدالت کو بتائیں گے، اور 5 مقدمات میں جو کہ عمران خان کی یہ حفاظتی ضمانت ہے، کچھ ہی دیر بعد جو کہ اس پر سماعت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم ملک آپ کا۔ اور ادھر خاتون جج کو دھمکی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست۔ عدالت نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی وارنٹ منسوخی کی درخواست کو ہدایات کے ساتھ نمٹا دیا۔ سینئر سول جج رانا مجاہد رحیم نے عمران خان کے 29 مارچ تک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست نیب نے جواب جمع کرا دیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ عدالت نے ریمارک کیے کہ عبدالستار خان نیازی اور مریم نواز کیس بطور نظیر آ گئی ہے، اب اسے لارجر بینچ کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کا منفی رویہ سب کے سامنے ہے۔ عمران خان جتھوں کو لے کر عدالت پہنچتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا غیر قانونی اقدام کسی بھی سیاستدان نے نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ملزم عدالت میں پیش ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ جب پولیس عمران کو گرفتار کرنے ان کی رہائش گاہ گئی تو افسروں اور اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر حملے کی ویڈیو بھی دکھا دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
तहरीक इंसाफ की तशद्दुद की सियासत, वफाकी हुकूमत ने सबूत दुनिया के सामने रख दिया। गैर मुल्की मीडिया को मदऊ किया। ज़मान पार्क में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जुडिशल कम्प्लेक्स में हंगामा आराई पर मुश्तमिल वीडियो दिखाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, इमरान खान एक मायूस आदमी है जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं। इमरान खान बज़िद हैं कि अदालतों के सामने पेश नहीं होना। जब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने उनकी रहायशगाह गई तो उन पर हमला किया गया। An accused has ever refused to appear in the court. This is being seen on television screen or being witnessed by everyone almost for last so many weeks that Imran refuses to appear in the court on different pretexts. वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान जिन पर हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद करता रहा उन्हीं से मदद मांग रहा है। साइफर के जरिए इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया। Conspiracy against Pakistan or conspiracy against Imran Khan's government, the same people are now asking for help and rescue from the perpetrators of Bairuni Sazish. ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था, इमरान खान से सदर ममलिकत के जरिए जनरल बाजवा को तोसी की ऑफर की। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी और खराब चीजें ठीक हो जाएंगी। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान के मुबैना कत्ल की मनसूबाबंदी के बयानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इंतहाई संजीदा इल्ज़ाम है जिसके सबूत पेश करना जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। गुज़श्ता इंतखाबात में इमरान खान ने धांधली और करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर झूठा सियासी बयानिया बनाया था। इस बार इंतखाबात में इनको नए बयानिए की ज़रूरत है। मुझे कत्ल करने की साजिश भी बैरूनी साजिश की तरह से बेबुनियाद और मन घड़त सियासी और इंतखाबी बयानिए के सिवा कुछ नहीं है। पंजाब में इंतखाबात को क्यों मुलतवी किया? इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया है। खत में पंजाब के इंतखाबात की मनसूखी की वजूहात बताई गई हैं। सदर मुमलिकत को 8 अक्टूबर की नई पोलिंग तारीख से भी आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को 8 अक्टूबर की पोलिंग की नई तारीख से आगाह करना मुशावरती अमल का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रहे हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन टूटने नहीं देगी। इमरान खान को सियासी तौर पर संभाल नहीं पा रहे, अब उनकी कोशिश है कि जबर और कानून की ताकत से दबा दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन फाइल हो जाएगी, जब मैं उसी के दस्तखत करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आइन नहीं तोड़ने देगी। सारे मुकदमात जो बन रहे हैं इसका कोई कानून आइन से ताल्लुक कोई नहीं है। इमरान खान सियासी तौर पे इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जबर इस्तेमाल करके, कानून की ताकत इस्तेमाल करके उनको दबाया जा सके। जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना बड़ा होता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि उनका मसला सिक्योरिटी है, ना ही पैसे। अप्रैल में इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर अक्टूबर में पैसे कहां से आएंगे? तमाम सियासी अयाशियों के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए नहीं। 2 असम्बलियां इसलिए तहलील की थी कि 90 रोज में इंतखाबात हो जाएंगे। एक हफ्ते में कब्जा ग्रुप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वरना इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। पीर तक इलेक्शन कमीशन के आईनी बहरान के फैसले का पता लग जाएगा। नून लीग की 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन की नीयत नहीं, क्योंकि अवाम उनसे सियासी इंतकाम लेगी। शेख रशीद ने कहा, उनका मसला अब IMF है, ना गरीब की भूख। उन्हें सिर्फ इमरान खान के क्लीन स्वीप का खौफ है। बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है, आर या पार हो जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर इब्तदाई कार्रवाई शुरू हो गई। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदगान से मजीद तफसीलात मांग ली हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मियां दाऊद एडवोकेट को मरासला भी जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खान नियाजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने हसन खान नियाजी को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले किया। अदालत ने हिदायत जारी की है कि हसन खान नियाजी को तफ्तीशी ऑफिसर मुतल्लिका अदालत में 25 मार्च को पेश करे। सेनेटर इरफान सदीकी ने फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की साजिश करने वालों को कटहरे में लाने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि साजिशी अनासिर मुल्क की दिफा से खेल रहे हैं। हुकूमत इन अनासिर को गैर जरूरी रियायत दे रही है। फौज की सियासत में मुदाखलत और मुहिम जो जर्नैलों की आइन शिकनी और मार्शल लाओ पर हमेशा तनकीद होती रही। मौजूदा बहरान का एक बड़ा सबब यही रहा है, लेकिन आज PTI ने पाकिस्तानी फौज को बतौर एक इदारा निशाने पर रख लिया है। मौजूदा आर्मी चीफ को तकर्री से पहले भी मतनाज़े बनाने की
की कोशिश की गई और अब भी इसे हदफ बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सदीकी ने मजीद कहा कि PTI न सिर्फ अंदरून बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी फौज को निशाना बना रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और ब्रिसल्स में मुजाहरे इसी मंसूबे का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को खतूत लिखे जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा कंपनियां हायर की जा रही हैं। बहैसियत इदारा फौज को निशाना बनाना और इसके चीफ पर इल्ज़ामात आयद करना मुल्क के दिफा से खेलने के मुतरादिफ है। ऐसे अनासिर को बिला ताख़ीर कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। ऐवान सदर इस्लामाबाद में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और स्पीकर कौमी असम्बली समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर आरिफ अलवी ने मादरे वतन का दिफा करने वाले शहीदों और गाजियों को एजाज़ात दिए। वतन का दिफा करने वाले हमारा फख्र, पाक फौज की तारीख शोहदा की कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान से भरी पड़ी है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में शोहदा और गाजियों में फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदा के खानदानों के अफराद और हाजिर सर्विस अफसरान को एजाज़ात से नवाजा, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब में शरीक हुए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा के एजाज़ात खानदान के अफराद ने वसूल किए। मेजर शुजात हुसैन शहीद, कैप्टन मोहम्मद बिलाल शहीद और कैप्टन फहीम अब्बास शहीद के एजाज़ात उनकी बेवाओं ने वसूल किए, जबकि सिपाही मोहम्मद वक्कास का एजाज उनकी वालदा ने वसूल किया। पाक फौज फिजाइया और बहरिया के अफसरों और जवानों के अलावा सऊदी अरब, बहरीन और दीगर मुल्कों के फौजी अफसरों को भी एजाज़ात दिए गए। पाकिस्तानी मैशत के लिए बड़ी खबर है। चीन ने पाकिस्तान से $2 अरब का कर्ज वापस लेने की मुद्दत में तोसी कर दी है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने तस्दीक कर दी है। $2 अरब सेफ डिपॉजिट में जमा कराए जाएंगे। मरकजी बैंक के ज़र मुबादा के ज़खायर में इजाफा होगा। बैरूनी मालियाती यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम उठा सकेंगे। IMF का बयान मजीद कहा कि पाकिस्तान की मैशत को सुस्त शरह नमू और बुलंद अफरात ज़र जैसे चैलेंजेस का सामना है। ये सब चैलेंजेस पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की वजह से हुए। मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने फैसला कुन इक़दामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये फैसला किन इक़दामात पाकिस्तानी मैशत को मुस्तहकम करने और एतमाद को बहाल करने के लिए किए गए हैं। हफ्तावार महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 46.65% पर पहुँच गई। एक हफ्ते में महंगाई में 1.80% का मज़ीद इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक़ हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। एक हफ्ते में 26 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई हैं। अहम खबर एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि हफ्तावार महंगाई मुल्क की तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह 40.65% पर पहुँच गई है। रियाज टाइम से मज़ीद जानते हैं। जी रियाज। जी, इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें ये बताया गया है कि महंगाई ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई में 46.65% पर मजमूई तौर पर मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर महंगाई पहुंच गई है, जबकि इस हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.80% तक मजीद इजाफा हुआ है। इस इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हफ्ते में 26 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई है, जबकि हालिया हफ्ता 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई है और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 71.70% महंगे हुए। इसी तरह आलू 11.47% महंगे हुए, केले 11.7 और चाय की कीमत में 7.34% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी हफ्ते के दौरान चीनी, मटन, बीफ, सिगरेट और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ी और एक हफ्ते में चिकन की कीमत में 8.14% की कमी रिकॉर्ड की गई है। LPG ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज ताइम आपका। कमिश्नर कराची की जानिब से शहर के 28 मकामात पर सस्ता रमज़ान बाजार कायम करने का ऐलान किया गया था। ताहम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के रेलवे ग्राउंड में सस्ता बाजार के नाम पर सिर्फ शामियाने और टेबल ही मौजूद हैं। इंतज़ामिया कहती है कि बारिश के बायस इंतज़ामात मुकम्मल नहीं किए जा सके। इस बारे में मज़ीद सूरत हाल हम जानेंगे कराची से हमारी नुमाइंदा मोना सरीकी से। मोना, क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट करेंगे आप हमें?
जी, कमिश्नर कराची की जानिब से कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट में 28 मुकामात पर रमज़ान बचत बाज़ार लगाए गए हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर टेबल्स बिल्कुल खाली हैं, टेंट लगा हुआ है, स्टॉल्स के लिए टेबल ज़रूर लगी हुई हैं, लेकिन सामान अभी तक ताहाल यहाँ पर दस्तयाब नहीं हो सका है। इस वक्त अभी तक सामान की दस्तयाबी अमल में नहीं आई। सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद के मुख्तियार कार सलमान फारसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते सर ये बताइए अभी तक सामान दस्तयाब क्यों नहीं हो सका? मैडम, सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमें डायरेक्शंस मिली थी कि आवाम की रिलीफ के लिए रमज़ान बचत बाज़ार लगाए जाएं, इस्टेब्लिश करें और वो फंक्शनल किए जाएंगे यकुम रमज़ान, यानी कि फ़र्स्ट रमज़ान से उसको फंक्शनल करें। फ़र्स्ट रमज़ान को इंसिडेंटली वो बारिश हो गई, जिसकी वजह से ये सारी अरेंजमेंट्स हमारी ख़त्म करनी पड़ी उसको। अब आज फर्स्ट डे है, कोऑर्डिनेशन में है, होपफुली इंशाल्लाह नमाज जुम्मा से पहले या उसके बाद ये तमाम स्टॉल्स हमारे फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ पर ग्रॉसरी के तमाम चीज़ें होंगी, आटा, घी और दालें वगैरह। इसके अलावा जो भी ज़रूरी अशिया हैं वो यहाँ सब्जियाँ और फल भी होंगे? जी बिल्कुल, सब्जियाँ, फल, वो रोज़मर्रा की अशिया के अंदर जो ज़रूरी अशिया हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त की जाएंगी। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ताहाल यहाँ पर सिर्फ खाली टेबल ज़रूर हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी सामान यहाँ से जो सस्ते दामों फ़रोख्त किया जाएगा उसकी दस्तयाबी अमल में नहीं लाई गई है। शुक्रिया मोना आपका। महंगाई ने रमज़ान मुबारक में भी शहरियों का पीछा नहीं छोड़ा। आटे, दालें, सब्जियां समेत अशे खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लाहौर के शहरी महंगाई के बायस शदीद परेशान हैं। मज़ीद सूरत हाल हम जान लेते हैं वकास गौरी से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में भी शहरियों को जो है वो महंगाई के तूफ़ान का सामना करना पड़ा है। आटा, दालें, चिकन, घी, सब्जियां, सब कुछ जो है उसकी कीमतें आसमान पर हैं। अगर आटे की बात की जाए तो शहर की बेशतर दुकानों पर आटा दस्तयाब नहीं है। वैसे चक्की आटे की जो कीमत है वो 160 रुपये मुकर्रर है, जबकि जो फ़ाइन आटा है वो 147 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन बेशतर दुकानों पर आटा मौजूद ही नहीं। जहां आटा मिल रहा है वहां उसके मनमाने नर्ख जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर सब्ज़ी की बात की जाए तो अदरक जो है वो 600 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। भिंडी जो है उसकी कीमत 300 रुपये किलो तक जो है वो वसूल की जा रही है। शहरी इंतहाई परेशान हैं। रोज़ेदार जब फल ख़रीदने का सोचते हैं तो फलों की कीमतें भी आसमान पर हैं। अमरूद जो है वो 200 रुपये किलो है। इसी तरह सेब जो है वो 300 रुपये किलो है, जबकि केला जो कभी 100 रुपये 150 रुपये दर्जन हुआ करता था वो अब 400 रुपये दर्जन तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक की आमद के बाद अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया और हुकूमत जो है वो सिर्फ बयानबाजी कर रही है। उनको चाहिए कि वो अमली तौर पर रोज़ेदारों को रिलीफ दें। जी वेलकम बैक। मुल्क में बारिश और याराबारी की नई इनिंग्स जारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। टांक में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब में तब्दील। कोयटा, कान, मेहतरजई, सिब्बी, बोलान में बारिश और याराबारी। पहाड़ी इलाकों की नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। जिला लोयर और अपर वज़ीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में बारिश के नए स्पेल की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर हिस्सों में बारिश से जल थल एक हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में वक्फे से बारिश हर शहर धुल कर निखर गई। गुजरावाला, उकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, मियांवाली में भी बादल खूब बरसे। सरगोदा, राजनपुर, मियां चुन्नू, लिया में भी बारिश और जालाबारी से फसलों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में टांक के इलाके में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गाँव झील का मंजर पेश करने लगे। बन्नू में हल्की बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। कोयटा, कान, मेहतरजई, सिब्बी और बोलान में बारिश और जालाबारी। चमन, पशीन, कोलू, डेरा बुक्टी में कई घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। मरकजी रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। ज़ियारत में रात गए बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। जिला लोर और अपर वजीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। 4 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। टीम में कप्तान शादाब खान के अलावा मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फहीम अशरफ, अम्माद वसीम, नसीम शाह भी शामिल हैं। साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान, एहसानुल्लाह आज अपना पहला मैच खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शारजा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में इंग्लैंड ने इटली को हरा दिया। पुर्तगाल ने
कैंगटन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पुर्तगाली स्टार रोनाल्डो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। भारतीय पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को नाअहल करार दे दिया। राहुल गांधी को गुज़श्ता रोज सदक इज़्ज़त केस में मुजरिम करार दिया गया था। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि भारतीय पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को नाअहल करार दे दिया है। राहुल गांधी को गुज़श्ता रोज सदक इज़्ज़त केस में मुजरिम करार दिया गया था। फ्रांस में जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के बायस दारुल-हुकूमत पेरिस समेत मुल्क भर में लाखों मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। 149 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद झड़पों में जख्मी हुए। फ्रांस में 19 जनवरी को शुरू होने वाले मुजाहरे थम न सके। आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी एहतजाज को ठंडा न कर सका। समेत मुल्क भर में लाखों अफराद रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। असातिज़ा और सैनिटरी वर्कर समेत मुख्तलिफ यूनियंस के अफराद सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुजाहिरीन ने गाड़ियों, दुकानों और रेस्टोरेंट्स के शीशे तोड़ दिए, आग लगा दी और दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। झड़पों में सैकड़ों पुलिस एहलकार और दर्जनों शहरी जख्मी हुए। पुलिस ने वाटर कैनन, स्टन ग्रेनेड्स और आंसू गैस की शेलिंग के दौरान सैकड़ों अफराद को हिरासत में भी लिया। ईरान से ताल्लुकात बहाली के बाद सऊदी अरब ने शाम में भी सिफारत खाने खोलने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि शाम के इंटेलिजेंस एहलकार के साथ बातचीत के दौरान सिफारत खाने खोलने पर इत्तेफाक हुआ है, जिसमें रूस की सालसी के मुज़ाकरात के नतीजे में सऊदी अरब और शाम ईद उल फित्र के बाद दोबारा सिफारत खाने खोलने पर रजामंद हो गए हैं। इसके बाद शाम और सऊदी अरब राब्तों में तेजी आई है। शाम में 2011 की खाना जंगी के बाद से बेशतर अरब रियासतों ने शाम से ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।